हेलो स्टूडेंट। आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल इन टुडेस क्लास। सो आज के क्लास में हम लोग HTML में कुछ पोर्शन कवर अप करेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास राइट नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को नोटपैड ओपन करना पड़ेगा दैट यू नो इट because Notepad is the editor that is being used up to write up HTML script. As soon as Notepad will get open, so as we will be dealing with HTML5, so the thing that you have to write it down to make our document supported in HTML5 type is doc type HTML. You have to write this command every time if you want your HTML command to be of HTML5 type. HTML are of various type, but the latest version that we are using is HTML5. So we can easily convert our HTML document to HTML5 type if we will going to write this particular command. Along with that, you can write this particular command also, that is HTML is equal to double inverted comma en. It will set your language to English by default. Okay, because what actually happened ki when you're writing some kind of a command in HTML and when it will be read by a browser, it may convert your HTML document to a specific language. But we actually want that particular document to be remain in English language. So that is why these two command will work into. So first of all, exclamation mark doc.html will convert our document to HTML5 type, and HTML lang is equal to en will keep our HTML document as English language type. After that, you have to write down the basic HTML command or the structure that we actually follow up. HTML head, then after title, like this. The title command is used to just write down the heading of our title bar. So for example, I'm just doing that for class 10 students. So I have just already mentioned it for class 10 title. I just close it. So what I actually get over there, this title command actually get open over here, and I've closed the title command over there. So kind of command having the opening title as well as the closing title is called as container tag is called as container tag. The container tag will be having that opening title as well as the ending ending slash is also being used to end up the particular command also. So kind of a command having start as well as end is called as container command in HTML. So after writing it down, we'll be dealing with the body part because body part is one of the most important part where we'll be writing down all the code. So just think about that I've written a body part and inside of which only I have to write every command. So body I have started, so body I have to close it. In the similar way, everything must go on in the opposite manner. जैसे कि मैंने बॉडी को लास्ट में लिखा था तो बॉडी सबसे पहले क्लोज होगा. टाइटल को मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है बट हेड को मैंने क्लोज नहीं किया था तो आई नीड टू क्लोज हेड कमांड जस्ट राइट नाउ. In the similar way, मैंने HTML को open किया था, but I didn't close it, so HTML should be closed. And just right now, I'll be writing down everything inside of the body portion because body portion में जो भी चीज लिखा जाएगा, it will be getting executed and it will be considered as a body of a web page. Okay, so that is why I'll be writing down everything in the body command. So first of all, the thing that we're going to discuss is all about saving a particular HTML command. जैसे कि मैंने ये HTML command लिख लिया है, I have to save it by any name. So first of all, go to file and then after choose the option save. So as soon as you will be doing that, you will be asked for a location where you want to save the document. For example, I just simply want it to be my desktop where I just simply want to save it. Then after I have to save it by some kind of name. For example, home is my web page name. And after the .html, you have to write it down to convert your document to HTML tag. So I said it will be read by the web browser very easily. So as soon as I'll be saving my command, you'll be finding it out in the desktop only. Home is written over there, and this is the HTML page that I have just created right now. But if you're just going to double click it, you'll be finding it out. It will be getting open, and title bar will show only class 10. But inside of the body there is nothing because I haven't put any code for inside of a body. So that is why it will remain empty. But the heading I have already put. That is why the heading of the page should come as class 10 that I've already mentioned. So let's see what actually happening. So you can find it out. The heading that is the title bar we have already given in the title option class 10. So this particular command will create the heading of our title bar or the tab
Okay, and we haven't mentioned anything inside of the body, so that is why there is nothing inside of that particular page. So first of all, we'll be dealing with a lot of command. So first of all, the basic command that can be used, I'll be discussing about the basic commands only. So first of all, जो कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट दैट, वी नो अबाउट द हेडिंग. So heading command h1 to h6, there are total 6 command that is being used up to create heading. So if you will write it down afs bhaktogra like this, and it's a container tag, so you have to close it down. So total, you after saving it down, you will find it out key like this only, afs bhaktogra will be written down. Okay, so the thing is that key, it is of h1 type, so the maximum size is, maximum highest size जिससे ये क्रिएट हो सकता है इस H1 टाइप. एंड देयर इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड एज S6. तो S6 से सबसे छोटा क्रिएट होगा. So if I will just show you one by one ki how there will be the size difference actually. So you can see this particular example that will demonstrate ki how different heading will be different sizes. So I'm showing you that thing by means of using 6 different header tag. ओके, तो हर एक का तुम्हें अलग अलग साइज देखने को मिलेगा. यू कैन इजीली एनालाइज इट आउट कि कौन से हेडर से सबसे मैक्सिमम हाइट मुझे देखने को मिल सकता है एंड किससे हमें सबसे छोटा हाइट देखने को मिल सकता है. ओके, विल बी सीइंग दैट थिंग आउट राइट नाउ. So I have just converted that thing to different headings of 6 different types. That after saving it out, I'm just going to save it out. So इसको save out करने के बाद we can find it out कि हमारे यहाँ पे एफ एस बागडोगरा 6 बार लिखा हुआ है, जिसमें से H1 टाइप सबसे बड़ा हेडिंग है एंड S6 टाइप सबसे छोटा हेडिंग है. तो we just come to know about that कि there are total 6 header that we can make use of, that is from H1 to S6, जो हम लोग अपने कोडिंग में यूज कर सकते हैं. इन द सिमिलर वे वी हैव गॉट द बोल्ड कमांड. तो बोल्ड कमांड क्या होता है, उसे लिखने के पहले जस्ट वाले में तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये बोल्ड कमांड के बिना कैसे दिखता है. सो दिस इज class 10. I have written this thing, huh? And I've saved it. So after saving it down, you can find it out कि कैसा दिखेगा. This is class 10. You can see it out कि this is class 10 यहाँ पे दिख रहा है. But as soon as I'll be putting bold command to it, अगर मैं इसके सामने bold add करूँगा, तो I have to do it with the help of this. That is B. And I have to close it also because मैंने इसे use किया है तो इसे बंद भी करना पड़ेगा. It is a container tag. As soon as I'll be saving it and I'll be refreshing the page out, you can find it out कि there is a difference. Difference क्या है, it is becoming more dark. ये dark हो गया because I have made use of the bold command. In this similar way, bold के अलावा I can make use of underline command also. एक साथ हम लोग बहुत सारे command use कर सकते हैं at one को. तो मैंने underline command use किया. I'm just saving it out. Just see कि how there's a difference actually. There's an underline coming up right now. In the similar way, bold underline का अलावा if I just simply want to make use of italic command, तो italic से तुम्हारा जो text होगा that will be little bit slanted, that you know है, तो slanted हो जाएगा. तो let's see what's the main difference after applying this command. Yes, it is getting little bit slanted. तो you can find it out कि ये बहुत ही बेसिक कमांड्स होते हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग के लिए. और इसके अलावा अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हाउ टू पुट कलर. एक्चुअली कलर हम कैसे पुट कर सकते हैं. अगर हम चाहते हैं कि पूरे वेब पेज का खाली एक सिंगल कलर ही फॉलो अप हो, तो वी हैव टू राइट डाउन दैट थिंग इनसाइड ऑफ द बॉडी. So inside of a body we have to write body text is equal to red. If I will write it down in this manner, तो जितने भी सारे मैं टेक्स्ट पुट अप करने वाला हूँ या जितना भी सारा कंटेंट मैं यहाँ पे रखूंगा, that will be of red text. Just see, it's getting converted to red. मुझे सभी के लिए रेड नहीं देना पड़ा, बट स्पेसिफिकली मैंने बॉडी में तब रेड लिख दिया है, तो each and everything will be converted to red color. Understood? So by means of that only I can convert every text in my page to red color. कुछ तरीके से BG color command is also being used up. तो BG color का मतलब होता है background color of the page, जो मैं कोई भी color दे सकता हूँ. For example, I have given the color to green. So just see how it look like. So as soon as I'll be saving it out and refresh the page out, the color of my page will be getting converted to green color because ये BG color जो होता है background color को green कर देता है. Okay, so all those things we can make use of in our command only with the help of this attributes जो हम लोग यहाँ पे put up कर रहे हैं, and each and every attribute is having some kind of specific function जो तुम देख पा रहे हो. In the similar way हम लोग और भी बहुत सारे कमांड यूज कर सकते हैं. जैसे अभी मैं कमांड जो यूज करने वाला हूँ that is all about font command. ये font command क्या होता है, तो ये जो font command होता है, with the help of that we can write in a different writing style, as well as we can increase the size of our font also. We can give different color to our writing style also. So that is the main function. So font लिखने के लिए you have to just keep font. Then after face, font face से actually क्या होता है कि तुम्हारा writing style change होता है.
हाँ, तो हमने जस्ट अभी देखा कि यहाँ पे जो फॉन्ट कमांड होता है फॉन्ट फेस, तो फॉन्ट फेस कैन बी यूज्ड टू गिव राइटिंग स्टाइल टू अवर पेज। तुम इसमें कोई भी राइटिंग स्टाइल दे सकते हो, जैसे कि फॉन्ट फेस इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे एरियल लिख दूंगा, ओके, एंड देन आफ्टर मैंने इसे क्लोज कर दिया है और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो क्लास 10। सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली कि तुम देख पाओगे कि मेरा जो राइटिंग स्टाइल होगा दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड टू एरियल टेक्स्ट। तो अभी आई एम जस्ट सेविंग ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर हमें चेक करना है ब्राउजर में साथ साथ, तो हमें पहले सेव करना होगा और ब्राउजर को ओपन करके रिफ्रेश करना होगा। तो तुम देख पा रहे हो, देखो यहाँ पे हेलो क्लास 10 लिखा हुआ आ रहा है जैसे राइट नाउ। ओके, तुम देख पा रहे हो कि इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट सेम नहीं है, हेलो क्लास 10 लिटिल बिट डिफरेंट फॉन्ट में आ रहा है। मैं अगर चाहता हूँ कि इसका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो आई कैन राइट साइज। तो साइज अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल 24, तो ये 24 पॉइंट्स बड़ा हो जाएगा। लेट्स सी, मैंने सेव कर लिया है, अभी साइज बड़ा हो रहा है कि नहीं, यस इट इज गेटिंग बिगर। तो ये हेलो क्लास 10 अभी तुम्हारे बड़े साइज में आ रहा है। इन द सिमिलर वे ऑलरेडी पूरे पेज का कलर हमने रेड सेट कर पूरे पेज का कलर हमने रेड सेट करके रखा था। तो लेट्स रिमूव दिस पर्टिकुलर कमांड एंड सेव इट। तो अभी पूरा जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में आएगा। सो दिस इज द थिंग, मैंने रिमूव कर दिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिकली जो हेलो क्लास 10 है वो रेड कलर का आए। तो उसे चेंज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज दैट कि फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल तो मैंने लिखा ही है, साइज इक्वल टू 24 मैंने दिया ही है। अभी COLOR कलर अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल YELLOW येलो, तो मेरा जो टेक्स्ट अभी जो लिखा हुआ आ रहा है हेलो क्लास 10 वो कौन सा कलर में डिस्प्ले होने लगेगा, इट विल बी डिस्प्लेड इन कलर येलो। लेट्स सी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, इट इज गेटिंग डन। सो दैट इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस फॉन्ट फेस कमांड। तो फॉन्ट फेस में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एरियल लिखा है, इसके अलावा तुम कोई भी डिफरेंट हैंड राइटिंग चूज कर सकते हो। पर हैंड राइटिंग चूज करने के पहले तुम्हें एक चीज चूज करना पड़ेगा कि तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन से हैंड राइटिंग्स अवेलेबल है, जो मैं अभी तुम्हें दिखा देना चाहता हूँ कि तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिस्टम में हैंड राइटिंग कौन कौन से फॉन्ट अवेलेबल है, इसके लिए दिस पीसी में सबसे पहले क्लिक करना। उसके बाद सी ड्राइव में जाना। सी ड्राइव में जाने के बाद यू कैन गो टू विंडोज कमांड। विंडोज फोल्डर में जाने के बाद यहाँ पे तुम्हें फॉन्ट मिलेगा। यू कैन सी कि देयर इज अ फॉन्ट एक्चुअली। आफ्टर क्लिकिंग ऑन फॉन्ट्स तुम्हारे पास जो लिस्ट ऑफ फॉन्ट आ जाएंगे जो कि तुम्हारे सिस्टम में लोकेटेड है, जिसमें तुमने देखा कि जस्ट अभी मैंने एरियल यूज किया, तो दिस इज द फॉन्ट दैट इज ऑलरेडी बीन सेव इन माय मशीन और मैंने एरियल यूज किया था। इन द सिमिलर वे मैं अगर ऐसा हैंड राइटिंग में चाहता हूँ तो मैं ब्रॉड वे रेगुलर यूज करूंगा। अगर नॉर्मली मैं कैलिब्री भी यूज कर सकता हूँ, तो एनी हैंड राइटिंग मैं यहाँ से नेम यहाँ से चूज कर सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यूज करूंगा और यहाँ पे नॉर्मल वे में हिंदी के लिए तो इट्स मंगल एक्चुअली। तो लाइक दिस ओनली अलग अलग हमारे पास हैंड राइटिंग अवेलेबल है जो हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देख पा रहे हो रैवी रेगुलर, तो मैं ये वाला चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे ये वाला देना पसंद करूंगा। देखते हैं कि हमारा हैंडराइटिंग इसमें चेंज होता है कि नहीं। स्पेलिंग सही से लिखना पड़ेगा, RAVIE। तो आई एम जस्ट डूइंग दैट, RAVIE एंड देन आफ्टर रेगुलर एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट सेविंग द थिंग आउट। मैंने इसे सेव कर लिया है एंड लेट्स सी कि मेरा जो ब्राउजर है क्या उसे रीड कर पाता है कि नहीं कर पाता है। एंड देन आफ्टर मैंने जिस तरीके से लिखा है क्लास 10 उसमें चेंजेस आता है कि नहीं आता। Yes, you can find it out कि हाँ there is a change inside of it because मैंने font को change करके रैवी रेगुलर कर दिया है। तो in this particular way तुम कोई भी font choose कर सकते हो from your system actually जो कि support करेगा। So that is an important thing. Understood? तो ये font के बारे में हम लोगों ने just अभी पढ़ा, that is a very vital part actually। font के अलावा अभी हम लोग दूसरा चीज भी जानना चाहते हैं, that is all about setting of the alignment of the text। जैसे कि तुम एक चीज देख सकते हो कि ये जो hello class 10 लिखा हुआ आ रहा है, इसे अगर मुझे नेक्स्ट लाइन में अगर लेके जाना है तो हाउ कैन आई डू दैट। तो नेक्स्ट लाइन में अगर लेके जाना है तो व्हाट कैन आई डू इज दैट कि यहाँ पे दिस इज क्लास 10 कमांड जहाँ पे खत्म हुआ था, जैसे कि यहाँ पे दिस इज क्लास 10 कमांड यहाँ पे खत्म हुआ था, तो आई नीड टू जस्ट पुट द कमांड दैट इज कॉल्ड एज BR। BR का मतलब होता है ब्रेक रूल। अगर मैं एक बार BR यूज करूंगा और मैंने सेव कर दिया तो यहाँ से एक लाइन नीचे चले जाएंगे। लेट्स सी, देखो एक लाइन नीचे हम लोग चले जा चुके हैं, दैट इज इससे एक लाइन तुम्हारा ब्रेक हो चुका है। अगर मैं इसे 2 बार यूज करूंगा, अगर मैं इसे 3 बार यूज करूंगा, जितने भी बार मैं इसे यूज कर सकता हूँ, नॉट एन इशू। ये तुम्हारा एम्प्टी टैग होता है, मतलब इसे क्लोज करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो देखो मैंने इसे 3 बार यूज किया है और इसे सेव भी मैंने कर दिया है। तो अभी देखते हैं रन करके कि व्हाट हैपन। देखो ये 3 स्पेस नीचे चला गया है। तो दैट इज द थिंग एक्चुअली हैपनिंग विद दिस BR कमांड।
बीआर कमांड के अलावा अभी हम दूसरा कमांड भी यूज करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट एचआर कमांड, जिसके बारे में थोड़ा सा बात कर ही लेता हूँ बिकॉज एचआर कमांड इज ऑल्सो वेरी पर्पजफुल। तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है, जैसे कि हेलो क्लास 10 के बाद कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज मैंने एचआर कमांड नहीं यूज किया है। एचआर से हॉरिजेंटल रूल क्रिएट होता है, इसलिए हमें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एचआर लिख दिया और मैंने इसे सेव कर दिया है। लेट्स सी, देखो एक लाइन तैयार हो चुका है ओवर हियर। समझ में आया? इन द सिमिलर वे मैं हेलो क्लास 10 को ऊपर अगर लाइन चाहता हूँ तो मुझे बी एच आर कमांड जस्ट इसके ऊपर भी यूज करना पड़ेगा, बी आर के जस्ट नीचे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है और मैंने इसे सेव कर दिया। तो दोनों लाइन के बीच में क्लास 10 अभी मुझे दिखाई देगा, यस लाइक दिस ऑनली। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, पर यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि जो क्लास 10 है वो मूवमेंट नहीं कर रहा। ये जो टेक्स्ट है दैट इज फिक्स टेक्स्ट एक्चुअली, बट मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट मूवमेंट करे, या वो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाए। तो फॉर दैट थिंग ओनली आई नीड टू पुट एवरीथिंग इनसाइड मार्क्यू। तो ये मार्क्यू जो कमांड होता है, इससे मूविंग टेक्स्ट तैयार होता है। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि इसे जब मैं यूज करूंगा तो इसे मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसे ओपन किया है और मैं उसे इन द एंड ऑफ द टाइम तक उसे जाके मैं क्लोज भी करूंगा स्लैश ऑफ मार्क्यू से। समझ में आया? तो ये मेरा जो कमांड था मार्क्यू का, इसे मैंने यहाँ पे ओपन किया है और इन द एंड ऑफ द टाइम मैंने इसे क्लोज भी किया है और मैंने इसे अभी सेव कर दिया है। तो लेट्स सी कि ये जो पूरा टेक्स्ट है वो अभी मूवमेंट होगा कि नहीं। देखो, ये पूरा टेक्स्ट तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। तो मैंने एक मूविंग टेक्स्ट तैयार कर लिया है, सो इट कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ मार्क्यू कमांड दैट इज बीन अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग दैट वी लर्न एक्चुअली। इसके अलावा अभी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अबाउट अलाइनमेंट के बारे में। तो हाउ टू पुट इमेजेस एंड हाउ टू पुट अलाइनमेंट टू इट, उसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें अभी डिस्कशन करना चाहता हूँ बिकॉज अलाइनमेंट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अभी हमने ये वाला चीज किया है, अभी हम चाहते हैं कि एक पिक्चर पुट अप करें इन आवर वेब पेज, और उस पिक्चर को हम लोग सेटिंग अप करने वाले हैं इन आवर वेब पेज इन सम पर्टिकुलर वे। तो हाउ टू डू दैट? तो सबसे पहले तुम कोई पिक्चर का पुट अप करोगे तो जस्ट सेलेक्ट द पिक्चर फर्स्ट। तो कौन सा पिक्चर को तुम पुट अप करोगे तो सेलेक्ट करो। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि आई हैव गॉट सम काइंड ऑफ पिक्चर इन द मशीन दैट आई विल मेक यूज ऑफ। ओके, सम काइंड ऑफ पिक्चर जो मेरे मशीन में सेव है उसे मैं यूज करूंगा। Just think about that. I have got this picture in my machine, that is IMP. Some kind of database activity like this, or some kind of picture is there. Let's just think about that. ये पिक्चर मैं यहाँ पे अपने मशीन में यूज करूंगा इन सम पर्टिकुलर वे। ठीक है, सो दिस इज द पिक्चर। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि एक पिक्चर मैं अभी यहाँ से लूंगा और इसे यूज करूंगा। जस्ट थिंक अबाउट दैट, दिस इज अ कोलाज एक्चुअली जो मैंने बनाया था बच्चों के लिए। तो लेट्स सी कि ये कोलाज तुम्हारा किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो आई हैव जस्ट चोजन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ये वाला पिक्चर ले लेता हूँ, दिस इज क्वाइट गुड एनफ। तो ये पिक्चर को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, या मान लो कि मैंने पिक्चर लिया, आई जस्ट कॉपीड दैट पिक्चर आउट और मैंने इसे पेस्ट कर दिया इन माय डेस्कटॉप बिकॉज दिस इज माय प्रेजेंट लोकेशन ऑफ द पिक्चर राइट नाउ। तो ये मेरे पिक्चर का प्रेजेंट लोकेशन हो चुका है। तो हाउ टू जस्ट ऐड दिस पिक्चर? तो पिक्चर को ऐड करने के लिए हमको टाइप IMG SRC मतलब सोर्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे तुम्हारा एड्रेस ऑफ द पेज होगा एंड क्लोज इट। ओके, तुम यहाँ पे साइज भी मेंशन कर सकते हो, बट अगर मैं साइज मेंशन नहीं करूंगा तो इमेज का जो बाय डिफॉल्ट साइज है वही पुट अप हो जाएगा। लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक। तो अभी इस पिक्चर में राइट क्लिक करो एंड देन आफ्टर गो टू प्रॉपर्टीज ऑप्शन। तो एज सुन एज प्रॉपर्टीज में जाओगे तुम्हें ये पूरा एड्रेस कॉपी कर लेना होगा एंड देन आफ्टर पुट इट ओवर देयर, पेस्ट कर दो स्लैश। इमेज का नाम तुम्हारा क्या था? इमेज का नाम था फोटोजेन ड्रेस। तो आई हैव ऑल्सो कॉपीड दैट थिंग टू, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और इमेज का टाइप क्या था तुम्हारा? JPEG। तो इमेज का टाइप भी मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है, दैट इज JPG, सॉरी JPG है। तो दैट इज JPG, आई हैव टू राइट इट डाउन एंड आई हैव सेव्ड इट। हाँ, तो आफ्टर सेविंग इट डाउन लेट्स सी कि ये इमेज मेरे पेज में अभी डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा वेब पेज में। तो दिस इज द वे वी कैन पुट इमेजेस इन आवर पेजेस ऑल्सो। तो अभी रिफ्रेश करते हैं, जस्ट सी this image is been displayed in my page and this is the original size of the image, और ये image मेरे पेज में डिस्प्ले हो रहा है। You can easily see कि how beautiful it is looking actually, but ये जो image है ये मेरे पेज के बीचों बीच नहीं आ रहा। ठीक है, ये पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है। तो आई कैन अलाइन दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल्सो। अलाइन मतलब ऐसे अरेंज कर सकता हूँ इन ए वे कि वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो।
तो अलाइन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें P फॉर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा और यहाँ पे ALIGN अलाइन लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू, मैं अगर इसे लिख दूंगा RIGST राइट, तो ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये मेरा पेज के राइट हैंड साइड में चला जाएगा। तो मेरे पास जो एक्चुअल अलाइनमेंट होते हैं वो तुम्हारा लेफ्ट राइट एंड सेंटर होता है। तो मैं सबसे पहले बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट में ही होता है और मैं राइट करके दिखाता हूँ कि इफ देयर विल बी एनी चेंज इन द इमेज और नॉट। हाँ, तो ये इमेज तुम्हारा पेज के लेफ्ट हैंड साइड में आ पा रहा है और मैं उसे अगर राइट मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो एज सुन एज मैंने इसे राइट कर दिया है अलाइनमेंट, लेट्स सी कि देयर विल बी एनी चेंज इन द इमेज और नॉट। ठीक है, मैं पेज को अभी रिफ्रेश करता हूँ। देखो ये तुम्हारा राइट हैंड साइड ऑफ द पेज चला गया है बिकॉज द रीजन इज दैट इसका अलाइनमेंट क्या हो चुका है, इट्स बीन सेट टू राइट अलाइन। इन द सिमिलर वे मैं अगर सेंटर लिखूंगा CENTER, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सेंटर का स्पेलिंग क्या होगा। एक बार तुम भी ट्राई कर लेना, अगर वो TER होगा या TRE होगा, बट मैं अभी TER करके एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि देयर विल बी एनी चेंज। अगर नहीं होगा तो TRE से पक्का होगा। मैंने इसे सेव कर लिया है, देखो ये हो रहा है, इट मीन्स दैट द करेक्ट स्पेलिंग इज CENTER। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी इमेज को पेज के बीच में मैंने पुट अप कर दिया, देख पा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल गैप है, राइट हैंड साइड में भी इक्वल गैप है और वो पेज के बीच में लोकेट कर रहा है। तो इन दिस पर्टिकुलर वे मैंने यहाँ पे इमेजेस भी पुट अप किया है अकॉर्डिंग टू। और इसके अलावा मैंने अलाइनमेंट भी कर दिया है एंड द अलाइनमेंट जो मुझे हेल्प कर रहा है वो है इमेज को आइदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड या उसे सेंटर ऑफ द पेज में भी करने में मदद कर रहा है। अभी मान लो कि मैं इस इमेज के बारे में कोई चीज लिखना चाहता हूँ कि हाउ एक्चुअली फील अबाउट द इमेज, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ कमांड यूज कर सकता हूँ। जस्ट ओनली मान लो कि मैं पैराग्राफ कमांड यूज करूंगा और उसके बाद ही मेरा इमेज डिस्प्ले आउट होना चाहिए। तो आफ्टर HR मैं यहाँ पे पैराग्राफ कमांड यूज कर रहा हूँ। तो जस्ट ओनली मैंने पैराग्राफ कमांड यहाँ पे लिखा P फॉर क्रिएटिंग पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में मैंने जस्ट ओनली मान लो मेरे पास कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ इन्फॉर्मेशन है पैराग्राफ, तो मैं उसे कॉपी पेस्ट फटाफट कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी कुछ बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ्स है जो मैं ऐसे लेटर के फॉर्म में ऑलरेडी मैंने किया है, तो उससे मैं नॉर्मल तरीके से भी यूज करना चाहता हूँ। जैसे कि ये रिपोर्ट फाइल क्लास 10 और ये मैंने पिछले साल बच्चों को दिया था, तो लेट्स डू दैट। ये वाला से कुछ कॉपी एंड पेस्टिंग करता हूँ, लेट्स सी कि हाउ इट एक्चुअली लुक लाइक। ठीक है, सो हाउ द पैराग्राफ विल बी लुकिंग लाइक आफ्टर पेस्टिंग। तो यू हैव टू डू ऑल दो स्टफ आउट। तो बहुत ही कॉमन चीज मैं अभी तुम्हें सिखा रहा हूँ, दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू मस्ट हैव टू नो। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि मैं अभी ये वाला करना चाहता हूँ, सो मैंने ये वाला कॉपी किया एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई जस्ट पेस्टेड इट एंड देन आफ्टर इस वाले पैराग्राफ को मैंने क्लोज करने के लिए /P दबाया और मेरा पैराग्राफ क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो आफ्टर आई जस्ट सेव इट, मैंने इसे तक सेव किया, लेट्स सी कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैं जब इसे सेव करूंगा तो हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक, लेट्स सी हाउ माय पेज विल बी लुकिंग लाइक। तो लेट्स स्टार्ट विद इट, देख लो। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस, क्रिएटेड डेटाबेस नेम दिस एंड दिस, और ये तुम्हारा लाइक दिस इट विल बी गेटिंग डिस्प्लेड। मैं अगर चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट में चेंजेस करना, तो मैंने जस्ट अभी तुम्हें सिखाया कि फॉन्ट में कैसे चेंज करना है। तो पैराग्राफ के अंदर तुम्हें फॉन्ट कमांड यूज करना पड़ेगा। अभी तो दूसरा फॉन्ट लेंगे, फॉन्ट फेस इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया CALIBRI कैलिब्री। ठीक है, एंड देन आफ्टर साइज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे मान लो कि 16 पॉइंट्स ले लिया है एंड कलर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे ले लिया है RED रेड कलर। ठीक है, और ओके फाइन। तो इस तरीके से मैंने फॉन्ट कमांड भी यूज किया। तो फॉन्ट कमांड यूज करने के बाद आई नीड टू क्लोज द फॉन्ट कमांड ऑल्सो। तो फॉन्ट कमांड को मुझे यहाँ पे पैराग्राफ के पहले क्लोज करना पड़ेगा। तो /FONT, बिकॉज ये सब बच्चे भूल जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये सब चीज करना मस्ट है। तो आई जस्ट सेव दैट, लेट्स सी कि व्हाट विल बी द चेंज आफ्टर अप्लाइंग ऑल दोस थिंग आउट। तुम देख पा रहे हो कि नॉर्मली ऐसा डिस्प्ले हो रहा है और मैंने इसे सेव कर दिया है डिफरेंट फॉर्मेट। तो लेट्स सी, हाँ लाइक दिस ऑनली। देखो ये कैलिब्री फॉन्ट पे आ रहा है, तो कलर भी रेड दिखा रहा है और इन दिस पर्टिकुलर वे इट इज गेटिंग डिस्प्ले। ठीक है, अभी तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो तुम्हारा लिखा हुआ चीज है, ये तुम्हारा लेफ्ट अलाइंड है और राइट हैंड साइड में देखो यहाँ पे जगह खाली आ रहा है। इट्स नॉट लुकिंग दैट गुड। इसमें भी तुम अलाइनमेंट कीवर्ड यूज कर सकते हो। तो मैं तुम्हें यहाँ पे अलाइनमेंट कीवर्ड यूज करके दिखाना चाहता हूँ कि हाउ टू यूज अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट ऑल्सो, बिकॉज हमने अभी फोटो के लिए अलाइनमेंट देखा कि फोटो को किस तरीके से अलाइन हम लोग कर सकते हैं, अभी टेक्स्ट को भी किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं। तो पैराग्राफ मैंने जो कमांड लिखा उसमें मैंने लिखूंगा कि पैराग्राफ कमांड इज अलाइन इज इक्वल टू जस्टिफाई, बिकॉज जस्टिफाई सबसे अच्छा होता है, उससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में अलाइन हो जाते हैं। तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। तो अभी मैंने जस्टिफाई कर दिया है, मैंने सेव भी कर दिया है। देखो यहाँ पे जो स्पेसेस खाली है, इट इज नॉट लुकिंग गुड। अभी अच्छा लगता है कि नहीं? यस,
जस्ट राइट नाउ तुम देख पा रहे हो कि प्रॉपरली अलाइंड हो चुका है फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट हैंड साइड, और ये जस्टिफाइड हो चुका है। तो इन दिस पर्टिकुलर मैनर आज हम लोगों ने हेडिंग करना सीखा, आज हम लोगों ने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना सीखा। इन द सिमिलर वे एचआर करना सीखा, ब्रेक लाइन करना सीखा, फॉन्ट कमांड यूज करना सीखा, हमने फोटो पुट करना सीखा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना सीखा। ठीक है, तो हमने आज बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे फिलहाल कवर अप किया है इन दिस पर्टिकुलर फॉन्ट। अलाइनमेंट के बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया। सो होपफुली तुम्हें आज का वीडियो ये वाला अच्छा लगा, तुम्हें पर्पसफुल लगा होगा। प्लीज कमेंट करना कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इन द क्लास ग्रुप। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।